ਤਿਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਔਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਖੁਦ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਂਬਰ ਜੋਨ ਦਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬੂਦੀਨ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ। ਭਰਤਵਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮੁਦਾਇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੂਰਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਪੜੋਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ 1947 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ Arshad, the point here is, I think what Vijay is saying is कि this is a bill which is targeted at the Hindu community. आपको भी ऐसा लग रहा है? First and foremost, I want to be given a little time, as much as Mr. Bharadwaj has been given. Firstly, I want to state unequivocally that his observation on Mrs. Sonia Gandhi is highly objectionable. It is extremely embarrassing for somebody like me to sit here and hear that she has some agenda. And I don't know what agenda is, and I don't want to get into against that. Hindu. It is, I think, the very reason of such a rhetoric that you need a communal bill. There is a bias for a lady who has shown absolutely spectacular secular credentials in this country. And to say that I want to find genesis in a religion, bill could have been brought about by a different committee. Why should the National Integration Council bring about a bill? I am just about to say that when people are sitting in Ramlila Maidan and making bills, this is a council that has been formed purely for the purpose of assisting and advising the government in formulation of bills. It's a draft bill anyway, which will go to Parliament, and Parliament will vet it and go about it. Let me just come in to say what the bill is, as opposed to what Bharadwaji thinks. Take an example of a hospital, for example. For any sporadic or contagious infection that might come in, hospital takes its own precautions. But wards of elderly and children are more sanitized than any other wards because they are vulnerable. Now this bill has a precise analogy of that. There are some vulnerable communities based on their religious affiliation, the linguistic minority, etc. And therefore you need to sanitize them and isolate them by creating a prevention of communal law that helps them to access justice and reparation, especially because they are vulnerable. That's what the act is. And the genesis of the act is only to help them because their targeted violence is committed against them. एक मिनट क्यासपुर जी तो लेवन ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ क्यासपुर जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਮਿਊਨਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਐਸਾ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਰਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਐਮਐਲਏ और उस एरिए का SSP और उस एरिया का DSP सीधा ही तिहाड़ जेल की उस जगह पर होना चाहिए जिथे सिख ते मुसलमान घट गिणतियां दे लोग तिहाड़ जेल दे विच भी, क्योंकि 4 पॉइंट हैगे ने सैगमेंट जिथे के अलग अलग लोग रखे जाते हैं। दूसरी गल यह है कि ये जिहड़ा बिल है कि ये अगर इदां दा बिल अगर लिआउंदी है सरकार, सानू उस दा स्वागत करना चाहिए। कमाल की गल है, स्वागत करना चाहिए। मैं कहना तुसी अगर बिल हजे तक मेरे तुसी पढ़िया नहीं है, तुसी बिल दे बारे जानते नहीं हो। बिल्कुल बिल बारे जिहड़ी मेन पॉइंट आ रहा है कि बिल दो फिरकियां विच वंड दित्ता, दो फिरकियां विच की वंड दित्ता है, विच तां वंडे ही होए आ। ਅਸੀਂ दो फिरकियां की ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ ਆਲਰੇਡੀ। नहीं दो फिरकियां वाली गल नहीं है, तुसी बिल दी गल करो, बिल दी गल कर रहे हैं। अर्शद जी, आज जो बीजेपी की नेता है सुषमा स्वराज, वो भी उन्होंने भी कहा है कि ये जो बिल है ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा देगा, जैसे कि उन्होंने कहा कि ऑलरेडी धर्म के आधार पर जो है वो कैसे देगा सांप्रदाय को बढ़ावा। मेरी बात आप बिल में ये देखिए कि
80.46% मेजॉरिटी हिंदूज हैं सारे स्टेट्स में, लेकिन लेकिन सात ऐसे स्टेट्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, मेघालय, क्या हाल है हिंदू, जहां पर हिंदूज माइनॉरिटी में हैं, हिंदू खबर कर दिए वहां से, उनके भी राइट बात रखने दीजिए। हिंदू मिनोरिटीज में है ये जहां पे हिंदू मिनोरिटी पे है, हिंदू खत्म कर दिया वहां से। मगर जहां पे देखिए, बाकी आई हैव नो आंसर टू दैट काइंड ऑफ कम्युनल रिटोरिक। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि दिस बिल कवर्स हिंदूज इन दो 7 स्टेट्स वेयर दे आर इन माइनॉरिटी। इट आल्सो कवर्स इट आल्सो कवर्स नॉन मराठीज इन महाराष्ट्र। It also covers Dalits in places where they are. It also covers Muslims जोड़ दिया। It covers everybody। मुझे तो समझ में नहीं आया कि इसमें communal bias था। भारद्वाज जी, इस बिल की सबसे पहले सिफारिश की थी जस्टिस MS लिबरहान ने, जो अयोध्या कमीशन की अध्यक्षता कर रहे थे। उनका मानना था, उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट्स को स्टडी किया, अयोध्या की जो उसके बाद अयोध्या डिमोलिशन के बाद जो वायलेंस हुई, उसके बाद उन्होंने सिफारिश की कि ऐसा बिल जरूरी है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उसमें जो माइनॉरिटीज हैं, ग्रुप वायलेंस है, कम्युनल वायलेंस है, उसको टैकल करने के इनफ सेफगार्ड्स नहीं है। मैं संधू साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਲੋ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸਲੇ ਕਾਮਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ मेजोरिटी कम्युनिटी के बंदे दे उत्ते झूठा इल्जाम भी लगाता जाएगा, वो बंदा 6 महीने वास्ते अंदर चल जाएगा। तुसी देश का कानून की कहता है भी जब तक बंदा अपने अपनी इनोसेंट की कोशिश कर दिंदा तब तक बंदे ड्राफ्ट बिल है ना, हाले ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਿਰਫ ਡਰਾਫਟ ਬਿਲ ਹੈ, ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। और उस तो बाद ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਲੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਉਹਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹੀ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਰਤ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। बुरा हाल किया सारे पास। ये कहते भी कहना मिनोरिटी कम्युनिटी जा रहा मिनोरिटी कम्युनिटी का, मैं कहना मेजोरिटी कम्युनिटी का हिंदुस्तान के भारत के देश के जिन्ना मेजोरिटी ने बुरा हाल किया उस तो जड़ा हुणे कानून 3000 सिखां दा मेजोरिटी ने कांग्रेस ने किया, मिनोरिटी ने किया, कांग्रेस ने किया। एक मिनट, आप वापस बिल बारे गल करिए। अर्शद जी, आपसे पूछना चाहूंगी, इस बिल का विरोध करने वालों में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस JS वर्मा और जो मुंबई में जो दंगे हुए थे उनके दौरान जो उस पर लिखा जिन्होंने जस्टिस BN श्री कृष्णा वो शामिल हैं। उनका कहना है कि बिल इज लॉन्ग नो क्योर एंड शॉर्ट ऑन प्रिवेंशन, यानी मसले का हल लंबा है और रोकथाम कम है। साथ ही उनका कहना है कि इस वक्त प्री फैक्टो एक्टिविज्म की जरूरत है, ना कि पोस्ट फैक्टो की एक्टिविज्म की। मतलब ये कि हिंसा की नौबत नहीं आने देनी चाहिए, लेकिन बिल में ऐसा कुछ नहीं है। मुझे आपको अपना जो इसका रिप्लाई है उस देने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंडर बताने दीजिए। होता यह है कि इस बिल के अंदर एक प्रावधान है कि जहां तक संविधान का सवाल है, इट इज़ अलाउइंग सेक्युलरिज्म इन द कंट्री, लेकिन इंस्टीट्यूशनल बायस इस कंट्री में बहुत अपेरेंट है, हमेशा से रहा है। जो इस बिल की सबसे ज़्यादा ख़ास बात है, जिसपे मैं इस बिल के बारे में कहना चाहता हूँ, वो ये है कि एक नेशनल अथॉरिटी ऑन कम्युनल हार्मनी, जस्टिस एंड रिपेरेशन बनेगी, जो मॉनिटर करेगी इन्वेस्टिगेशंस को, उन इन्वेस्टिगेशंस को जिसमें टारगेटेड वायलेंस हुई है, और वो फिक्स करेगी अकाउंटेबिलिटी उन ब्यूरोक्रेट्स की या उन ऑफिसर्स की जो जानते हुए भी कि दे हैड टू इंटरवीन डिड नॉट, विच हैज बीन द जनरल कंसेंसस। एक इसके अंदर निकलेगा पेनल्टी ऑन डेरिलिक्शन ऑफ कमांड, सुपरविजन कमांड, और अगर वो हो जाए तो किसी की अकाउंटेबिलिटी पड़ने पर उनके ऊपर जो पेनल्टी लगनी है उससे बहुत सारे ऑफिसर्स जो लॉ एनफोर्सर्स हैं उनको ये पता चलेगा कि इस बिल के आने के बाद दे हैव टू डू द ड्यूटी, अदरवाइज दे हैव टू गो। और ये एक प्रावधान है नेशनल अथॉरिटी फॉर कम्युनल हार्मनी, जस्टिस एंड रेपरेशन की कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन काफी लोग ये फील करते हैं कि ये बॉडी जो है ये एक टूथलेस टाइगर जैसी है,
इसमें कोई खास पावर्स नहीं है। देखिए ये तो बिल के आने पे पता चलेगा वेदर दे हैव पावर और नॉट, लेकिन एक चीज जो होएगी बहुत अच्छी होएगी इस बिल के बाद, वो होएगी अकाउंटेबिलिटी। हमने जितने बार टारगेटेड कम्युनल वायलेंसेस देखे हैं, चाहे वो गुजरात में रिसेंटली हुए थे, उड़ीसा में क्रिश्चियंस के अगेंस्ट हुए, वहां एक चीज बहुत कॉमन फैक्टर रही है, 84 में 6 के साथ हुई है। ये सारे कम्युनल वायलेंसेस में स्टेट का जो लॉ एनफोर्सिंग मैकेनिज्म था वो फेल हो गया। वो फेल होने की वजह से वायलेंसेस इतने स्पेरल आउट हो गए, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, और उसके बाद यह देखा गया कि कहीं पर भी अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। भारद्वाज जी, आपका इस नेशनल अथॉरिटी के बारे में क्या कहना है? वैसे तो ये 7 मेंबर कमेटी होगी, इसका एक चेयरमैन होगा, इसका एक मेंबर शेड्यूल कास्ट और ट्राइब से होगा और 4 इसमें औरतें होंगी। 4 औरतें होंगी, सारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के। जो चेयरमैन है वही माइनॉरिटी कम्युनिटी का, जो वाइस चेयरमैन वही माइनॉरिटी कम्युनिटी का। अपने आप ही कानून बनाना, अपने आप ही सजाएं देना, और जो जैसी ये बात कर रहे अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे थे, अब एक आदमी जैसे मैं विजय सिंह विश्व हिंदू परिषद का हूं, मेरे खिलाफ अरशद खान मालूम, इनको मालूम है या किसी और मुसलमान को मालूम है विजय सिंह विश्व हिंदू परिषद का, मेरे ऊपर घर बैठे केस दर्ज कर देगा, मेरे को पुलिस पकड़ के ले जाएगी। मेरे को क्या पकड़ेगी? विश्व हिंदू परिषद को, साथ में अशोक सिंघल जी को पकड़ लेगी। यहां भी इसके अंदर ऐसा बताया है जो जिस कम्युनिटी का बंदा, जिस संस्था का बंदा पकड़ा जाता है, उसके हेड को भी गिरफ्तार कर लो। उनका क्या मतलब? वारदात हुई, मेरे झूठा केस मेरे ऊपर डाला गया, मेरे साथ फंसा रहे अशोक सिंघल जी को भी। पूरे पंजाब के कानून ਤੁਸੀਂ 92 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਵੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, 92 ਤੱਕ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, 9 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ कि ਗਿਆਸਪੁਰ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੋ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਸਪੁਰ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਆ, ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ quite contrary to the belief, the latest thing is the NSC has dropped a clause in which the federal government could unilaterally initiate action in a state. They have dropped it. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤਵਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ VHP ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ऐसे ਕਦੋਂ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਆ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਲਗਾਇਆ। ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ग्यासपुर जी, अरशद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डिस्कशन में आने के लिए। समय हो गया है। अनेकता में एकता भारतीय लोकतंत्र की खास पहचान है, लेकिन जब अनेकता एकता पर हावी होने लगे तब सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं। अफसोस की बात है कि ऐसी घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं। फिर क्या इसका जवाब मौजूदा कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना है या फिर हमें एक नए कानून की जरूरत है? हमारे लोकतंत्र के लिए ये सवाल आज सबसे बड़ी चुनौती है। इसी के साथ हम आज का प्राइम यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।